large number of students and august assembly of distinguished visitors, thank you. I am Devendra Sharma. I am presently registrar, as it has already been introduced by the speaker. And my job is to see that university works efficiently. It is not academic part. I have been invited by BRE group of colleges for this BICON conference, and really thankful of this. So let me start first. First, I would say Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Yoshi, Taka, and Nishikawa. This means Ohayo gozaimasu means good morning in Japanese to Dr. Yoshitaka and Nishikawa, and also to our directors of BRE group of colleges, Manish ji, Sanjay ji, and Rakesh ji. Thank you. And also Mr. Chintan Bakshi, who has just come, and directors and all others. Today's topic is e-commerce and challenges and opportunities. This is really the hot topic, not of say year, but of say last 10 years, and maybe it may again continue for the next 10 years. I am not a great speaker, I am not an academician also, but few of the things that I have been doing all this time, seeing, and then I decided yes, I must speak whatever I know about the subject. And I think most of the students, surely they understand Hindi much better than English. So, do you approve if I speak in mix English and Hindi? Yes. That will be much better, because the comprehensibility is much more in the way we think and whatever we do. Most of students, as I have been told, are from Hindi background as well. So, why e-commerce is important in India? Look, आप कहीं किसी से बात करें, किसी बिजनेसमैन से बात करें, क्या कहेंगे? हमारे पास में कोई काम धंधा नहीं है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. ई-कॉमर्स की बात करें, if you speak of e-commerce, then this is the only business which is booming, and booming like anything. And why? What are the reasons? What is e-commerce? कॉमर्स क्या है? एक व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को आप अधिकतम सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर, लीस्ट प्राइस, बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी if you provide, and then the things and money goes in that direction. Flow is in that direction. चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे नेशनल ट्रेड हो, हमारा उद्देश्य होता है, हमारा सबका उद्देश्य होता है कि एक आम आदमी को सबसे कम मूल्य पर और बहुत बढ़िया चीज मिले. ई-कॉमर्स इसी नीड की पूर्ति कर रहा है. आज मॉल्स खड़े हैं, सब जगह मॉल्स खड़े हैं. दो तीन तरह के ट्रेड है. मॉल्स देखिएगा जो एक ऑर्गेनाइज ट्रेड हो गया, ट्रेडिशनल बाजार हो गया, और थर्ड इज ई-कॉमर्स. नाउ व्हाई ई-कॉमर्स इज गिविंग देम अ वैल्यू फॉर मनी इज rather I should say in crude words, giving them a good beating to the malls, to the bazaars,
because it is efficient, it is giving us value for money. से आज के टाइम में आप सब बच्चे हैं, आप जानते हैं कि कोई चीज आप परचेज करने जाएंगे, वो बाजार में बीबा की कोई आप ड्रेस खरीदने जाते हैं, बीबा की आपको मिल रही है 1800, 2000, 2500, और वही आप ट्राई करते फ्लिपकार्ट पे देखने की, अमेजन पे देखने की, और जगह देखने की, and then you try that I should get it say in 800, 1000. Why? How come this is happening? That in the shop you are paying 2000 and online you are paying 800, say 1200. This is because of economies of scale. There are so many expenditures. We are having, say on malls, keeping person over there, merchandising, everything, so many expenditures. And those expenditures, they are null, none of the expenditure you feel in e-commerce. Only one person stores at a particular place and sells it. Anyway, I think, let me tell you about the emergence of e-commerce. Which agency was the first that started e-commerce? Can anybody tell me? I mean, out of four, Amazon, Flipkart, Snapdeal, Jabong. Which one? Can anyone tell me? It was Flipkart. Flipkart started almost 10 years back. And it started like anything. Now, say after struggling for so many years, we got a good valuation and 1 billion का इनको पैसा मिला, इनको इन्वेस्टमेंट मिला, but then Amazon also came. Amazon को जब उन्होंने देखा कि इंडिया में इतना बड़ा बाजार है, 125 बिलियन, 1.25 बिलियन, 125 करोड़ लोग हैं, एंड जो पुअर पीपल है वो भी मिडिल क्लास की ओर जा रहे हैं, मिडिल क्लास की ओर बहुत बड़ा मिडिल क्लास पैदा हो रहा है, और ये जो मिडिल क्लास है ये आशाओं से परिपूर्ण है, ये चाहता है कि एक अच्छी जिंदगी जिए, और ये अच्छी जिंदगी जीने के लिए चीजें भी चाहिए, हमें ध्यान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन चीजें भी चाहिए, और इन चीजों की आपूर्ति जो हो सकती है वो ई-कॉमर्स उसमें बहुत बड़ा सहायक कर रहा है, चाहे आप पढ़ने के लिए लें, चाहे और कोई चीजें लें। स्नैपडील भी आ गया है, जबोंग आ गया है, और सारी चीजें अब आपको मालूम है। ये सब ई-कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है ये इसलिए है ताकि आपको वैल्यू फॉर मनी मिले। नाउ हर 3 सेकंड में आज इंटरनेट पर एक नया आदमी जुड़ रहा है। क्यों ई-कॉमर्स कर रहा है? क्योंकि आज फोन सस्ते हो गए हैं। फोन की क्या, पहले जो फोन आपके 20-25 हजार में मिला था स्मार्टफोन, अब वो जो फीचर फोन के भाव पर फोन मिल रहा है। चीप इंटरनेट है, चीप मोबाइल हो गया, इन दोनों का जो सहयोग हो रहा है उसके कारण ई-कॉमर्स बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी इंडिया में 2015 में 600 बिलियन की सेल हुई है, और हम सोचते हैं कि 2017 में 1000 बिलियन की ई-कॉमर्स सेल हो पाएगी। ये मेरे आंकड़े नहीं है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, ये उनके आंकड़े हैं। और फ्लिपकार्ट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये सबसे बड़ा प्लेयर है, इसके 4.6 करोड़ यूजर है, 4.6 4 करोड़ 60 लाख इंडिया की आबादी है,
1 करोड़ 25 लाख, तो 5 करोड़ यूजर्स आज आपके अकेले फ्लिपकार्ट के पास है। आप ये सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। और अमेजोन जो कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, उसके पास में जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो यूएस के बाद में वो वर्ल्ड वाइड सेकंड जो आ रहा है वो इंडिया में आ रहा है। अमेजोन की जो सेल हो रही है, नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, इंडिया इज देयर, इंडिया इज फास्ट कैचिंग। लेकिन इसके साथ में हमें यह नहीं भूलना होगा कि ई कॉमर्स बहुत स्लिपरी फील्ड है, कई तरह के चैलेंज आ रहे हैं। अभी बताया था कि हमारे यहाँ पर जो बैंक के जो पासवर्ड्स हैं वो बैंक पासवर्ड्स पब्लिक डोमेन में चले गए हैं, लोगों ने चुरा लिए हैं और उनका मिसयूज कर सकते हैं। इस तरह की चीजें, क्योंकि दो चीज आपको मैं बताऊं, अमेजोन क्या कर रहा है। अमेजोन खुद चीजें नहीं बेचता है, इसकी एक कंपनी है, खुद की कंपनी सेलर। दो अमेजोन क्या करता है कि सेलर्स को और बायर्स को मिलाता है, एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है। इसकी खुद की एक बहुत बड़ी सेलर कंपनी है क्लाउडटेल। क्लाउडटेल अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स है खरीदता है, रेट बहुत बड़े डिस्काउंट देता है खरीदने पे और बायर्स को अवेलेबल करवाता है, इसलिए हमें जो है चीजें आपको सस्ती मिल रही है। इसी तरह फ्लिपकार्ट पे भी है, उनकी भी अपनी कंपनियां हैं। लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या हम इसी तरह ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट क्या आपको लगातार मिलता रहेगा? लोग कहते हैं, मेरे पास में इनके बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं है, लेकिन ये कंपनियां सब ये कह रहे हैं कि घाटे में चल रही है और इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के और उसके बाद में और उसके वैल्यू पे बेस पे शायद हमारे एक्सपर्ट स्पीकर ज्यादा बता पाएंगे, और वो ग्राहकों को दे रही है। तो ये कब तक चलता रहेगा? लेकिन मैं सोचता हूं इसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, लोगों को जोड़ने का माध्यम है और ये माध्यम आगे चलेगा। लेकिन ये जो अभी इसमें में पायरेसी हो रही है, चोरी हो रही है, बहुत सारी जो सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली हमें परेशान करेगी। और जब तक हम एक बहुत रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप नहीं करते, तब तक हमें खतरा रहेगा। और स्पेशली हमारे जो आई रियली वेलकम जापानी डेलीगेट्स एंड फॉर providing us window to the opportunity, especially in Rajasthan and Jaipur, and we are really thankful. And I suppose this cooperation grows more and more, and we really will be able to have better relations, better knowledge from you. You are really at an advanced country, and I suppose this relation will be further strengthened. Thank you very much for giving me an opportunity.